Hello students, we are going to read chapter 6 of class 7th, that is respiration in organism, and also we will learn the several new things in this chapter. So let's start without any delay. If you are new to our channel, please subscribe it and also share the videos in your friend circle. So one day Buzo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to town after a year. He was in a real hurry as he wanted to receive them at bus stop. He ran fast and reached the bus stop in few minutes. He was breathing rapidly. His grandmother asked why he was breathing so fast. Buzo told her that he came running all the way. But the question got stuck in his mind. He wondered why running makes a person breathe faster. The answer to the Buzo's question lie in understanding why we breathe. Breathing is the part of respiration. Let us learn about the respiration first. So first we will know why do we respire. So in the chapter 2 you have learned that all the organisms are made up of the microscopic units called cell. So this you need to learn. Keep in your mind. A cell is a smallest structural and functional unit of organism. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transportation, excretion and reproductions. To perform these functions, the cell need energy. Even when we are eating, sleeping, reading, we require energy. Where does this energy come from? Can you say why the parents insist that you should eat regularly? Food stored food has stored energy which is released during respiration. सो अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने सिर्फ इतना जाना कि जब हम दौड़ते हैं या भागते हैं या कोई भी काम करते हैं जिसमें फिजिकल वर्क इन्वॉल्व होता है तो हमारी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं. तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब ब्रीथिंग हमारी तेज हो जाती है. अब ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेशन का एक पार्ट है. रेस्पिरेशन का ब्रीथिंग एक पार्ट है. सो हम सबसे पहले रेस्पिरेशन को समझेंगे. आप अभी तक ये बातें तो जान चुके हैं कि पिछली यूनिट्स में, पिछले चैप्टर्स में, कि आपकी बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर बनी होती है जिसे हम सेल बोलते हैं. सेल जो होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. हर सेल का कुछ काम होता है, जैसे कि कुछ सेलों का काम हो सकता है न्यूट्रिशन देना, कुछ का काम हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन, कुछ का काम हो सकता है एक्सक्रीशन और कुछ का काम हो सकता है रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो अलग अलग तरीके के जो भी सेल्स होते हैं, सेलों के अलग अलग काम होते हैं और इन सब काम को करने के लिए, इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की नीड होती है. अब चाहे हम खा रहे हों, सो रहे हों, पढ़ रहे हों, हमें एनर्जी चाहिए होती है. बट ये एनर्जी आती कहाँ से? दूसरा क्वेश्चन है. तो आपने अक्सर देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके पेरेंट्स लगातार हमेशा आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप खाना रेगुलरली खाएं. क्यों? क्योंकि जो खाना होता है उसमें आपका एनर्जी स्टोर्ड होती है. जब भी आप खाना खाते हो तो उसके बाद रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में, रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी क्या होती है आपकी बॉडी में रिलीज होती है. तो अब आप समझ गए कि आपको एनर्जी मिलती कैसे है. नाउ अब हम बात करेंगे, तो अब आप समझ चुके हो आपको एनर्जी मिलती कैसे है. नाउ देयर आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. एनर्जी फ्रॉम फूड. ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ एयर. ठीक है, you know that air contains oxygen. We breathe out air which is rich in carbon dioxide, and the air we breathe in transported to all the parts of body and ultimately to each cell. In the cell, oxygen in the air help in the breakdown of the food. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. Cellular respiration takes place in the cell of all organisms. So in this paragraph we have just learned कि हम जो भी क्या करते हैं, खाना खाते हैं,
ठीक है। तो उससे हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन मिलती कैसे है? जब हम सांस लेते हैं तो हम एयर को अंदर लेते हैं, और एयर में क्या होता है? आपका ऑक्सीजन होता है, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है। जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट होती है और अल्टीमेटली मतलब फाइनली आपके हर सेल तक पहुंच जाती है। सेलों के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन जो होती है हवा वाली, वो हेल्प करती है खाने को ब्रेक डाउन करने में। ब्रेक डाउन मतलब खाने से कुछ सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने में और एनर्जी को बॉडी में यूटिलाइज करने में। और इस प्रोसेस को, वो प्रोसेस जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है सेल के अंदर, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन हर तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द सेल फूड दैट इज ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग oxygen. Breakdown of the glucose occurs with the use of the oxygen. It is called the aerobic respiration. The food can also break down without using oxygen. This is called anaerobic respiration. Breakdown of food releases energy. So इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि हमारे सेल के अंदर जो फूड होता है उसके अंदर ग्लूकोज होता है, मतलब ग्लूकोज जो होता है ब्रेक डाउन होता है, टूटता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीजन को यूज करके। और जब भी ग्लूकोज आपका टूटता है, और जब भी ग्लूकोज आपका टूटता है ऑक्सीजन की हेल्प से, तब हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और फूड जो है आपका बिना ऑक्सीजन के भी ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है। ब्रोकन डाउन किया जा सकता है, होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। और जब भी फूड ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इन शॉर्ट हमने समझा कि रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। दोनों ही तरीके के रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के यूज से होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होता है, मतलब उसकी बिना ऑक्सीजन के हो जाता है। सो जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है उसे हम लोग किस तरीके से इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे? सो ग्लूकोज in the presence of oxygen gives carbon dioxide, water and energy. Now you should know there are some organisms as yeast that can survive in the absence of air. These are called anaerobes. They get energy through anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose break down into alcohol and carbon dioxide as given below. So glucose in the absence of oxygen give alcohol, carbon dioxide and energy. तो इस पैराग्राफ में हमने ये जाना कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि बिना एयर के, मतलब एयर के एब्सेंस में सरवाइव कर सकते हैं। और इस पैराग्राफ में हमने समझा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जैसे कि ईस्ट, जो बिना एयर के सरवाइव कर सकते हैं, मतलब एयर के एब्सेंस में सरवाइव कर सकते हैं। एयर से यहाँ पे मतलब है हमारा ऑक्सीजन से, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। इन्हें हम एनएरोब्स बोलते हैं। और ये जो है अपना एनर्जी जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं। जब भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो वो एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देता है, जिसे हम लोग कुछ इस तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें देता है एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। नाउ नो ए बिट अबाउट द yeast. Yeast are the single celled organism. They respire anaerobically and during this process yield alcohol. They are therefore used to make wine and beer. तो जो ईस्ट होते हैं आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एनएरोबिकली क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। इसीलिए इनकी रेस्पिरेशन के थ्रू एल्कोहल मिलता है, जिस वजह से इनका यूज जो होता है आपका वाइन और बियर मतलब शराब बनाने के लिए किया जाता है। Our muscles cell can also respire anaerobically, but only for short time. When there is a temporary deficiency of oxygen during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours, or heavy weight lifting,
the demand for energy is high, but the supply of oxygen to produce the energy is limited. Then anaerobic respiration takes place in the muscles cell to fulfill the demand of energy. तो इस पैराग्राफ में हमने ये समझा कि हमारी मसल्स जो होते हैं ये भी एनएरोबिकली मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शॉर्ट समय के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन टेम्परेरी। जब भी हमारे शरीर में डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है जब कुछ समय के लिए, जैसे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या तेज़ दौड़ते हैं या साइकिल चलाते हैं या काफ़ी दूर तक पैदल चलते हैं या फिर हेवी वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं, वजन उठाने का भारी, तो हमारे शरीर में डिमांड होती है एनर्जी की हाई। तो उस कंडीशन में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस कर पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई भी लिमिटेड होती है। इस तब क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में होता है, जिससे कि एनर्जी की डिमांड फुलफिल हो सके। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज हमारे मसल्स में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रेस्पायर करता है तो लैक्टिक एसिड बनाता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? The cramps occur when muscle cells respire anaerobically. The partial breakdown of the glucose product produce lactic acid. The accumulation of lactic acid cause muscles cramp. When we get relief from cramp after hot water bath or a massage, can you guess why it is so? Hot water bath or massage improve the circulation of blood. As a result, supply of oxygen to the muscle cell increases, and the increase in the supply of oxygen result in the complete breakdown of the lactic acid into the carbon dioxide and water. तो इस पैराग्राफ में हमने समझा कि जब भी हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं या भागते हैं तो अक्सर हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, मतलब हमारे मसल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं, दौड़ने का, भागने का, वेट लिफ्टिंग का, तो हमारे मसल्स एनएरोबिकली क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, जिससे ग्लूकोज पार्शियली ब्रेक डाउन होता है और लैक्टिक एसिड हमें देता है। क्या देता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्या होता है, मसल्स में इकट्ठा हो जाता है, जिससे मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं और इससे हमको रिलीफ मिलता है यदि हम गर्म पानी से नहाएं या फिर मसाज मालिश हो तो। ठीक है, अब गर्म पानी से नहाने से या फिर मसाज से क्या होता है, तो इससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट आता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा तेज हो जाता है, सही हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है क्या होती है, बढ़ जाती है। और फिर जो लैक्टिक एसिड होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो जिससे हमको काफ़ी क्या होता है, रिलीफ मिलता है। नाउ अब हम समझेंगे ब्रीथिंग के विषय में। इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 6.1। डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, और यू कैन डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो। सो क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट द वॉच। What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? Note down the time for which you could hold your breath. So now you know that you can't survive long without breathing. Breathing means taking in air rich in oxygen and give out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. Taking in of air rich in oxygen into the blood is called inhalation, and giving out of air rich in carbon dioxide is called exhalation. So in these two paragraphs we came to know कि जब भी हम सांस लेते हैं तब हम अंदर जो होता है ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ते हैं और इस प्रोसेस को हम एक्सेलेशन बोलते हैं। साथ में हमने ये भी जाना कि हम यदि अपनी नाक बंद कर लें तो ज़्यादा समय तक हम अपनी सांस को रोक के नहीं रख सकते, हमारा क्या होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। यदि आपने ये किया हो अपने पेरेंट्स के
सुपरविजन में, उनकी प्रेजेंस में, तो आप ये टाइम नोट कर पाएंगे। हार्डली आप 15-20 सेकेंड ऐसा कर पाए होंगे। बाकी आप अपना टाइम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस which goes on all the time throughout the life of an organism. The number of time a person breathes in a minute is termed as breathing rate. During breathing, inhalation and exhalation takes place alternately. A breath means one inhalation pulse, one exhalation pulse. ठीक है, one inhalation plus one exhalation. So, would you like to find out the breathing rate? Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by our body? Let us find out by doing the following activity. तो हमने जाना कि जो ब्रीथिंग है हमारी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जब तक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है तब तक ये चलती रहती है। जो पर्सन है 1 मिनट में जितनी बार को सांस लेता है और छोड़ता है उसको हम ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, तो एक ब्रीथ का मतलब हो गया एक बार सांस को अंदर लेना और एक बार सांस को बाहर छोड़ना। अब यदि आप ये जानना चाहते हो कि ब्रीथिंग रेट क्या है आपकी, ठीक है, या और भी किसी की, तो और ये एक कांस्टेंट है, मतलब 1 मिनट में फिक्स है, या फिर चेंज होती रहती है बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, एक्टिविटी 6.2। Generally, we are not aware that we are breathing. However, if you try, you can count your rate of breathing. Breathe in and out normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. Did you inhale same number of the time as you exhaled? Now count your breathing rate, number of times per minute after brisk walk, after running, and record your breathing rate as soon as you finish, and also after complete rest. Tabulate your finding and compare your breathing rate under the different condition with those of your classmates. From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, he or she breathe faster. As a result, more oxygen is required. तो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया? इस एक्टिविटी में हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में अपनी 1 मिनट में ये देखा कि हम कितनी बार सांस लेते हैं, मतलब सांस कितनी बार अंदर लेते हैं, कितनी बार बाहर छोड़ते हैं। उसके बाद हम थोड़ा दौड़े और दौड़ने के बाद फिर हमने काउंट किया, थोड़ी एक्सरसाइज की। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशन में हम अपनी क्या करेंगे, रेट को क्या नोट करेंगे और अपने एक टेबल बना लेंगे, उसमें नोट कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी जिन लोगों ने ऐसा किया है उनसे कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप पाओगे कि हम हमेशा एक जैसा ब्रीथ नहीं करते, अलग अलग कंडीशन में हम अलग अलग ब्रीथ करते हैं। हमारी ब्रीथिंग रेट जो होती है घटती बढ़ती रहती है। जब हम काम करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो हम ब्रीथिंग फास्ट करते हैं, और नॉर्मली हम ब्रीथिंग स्लो करते हैं। रेस्ट इस चैप्टर का पार्ट 2nd वीडियो में है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।